everyone watching the India Reads right now. Today we are going to start the last chapter. It is the chapter number 12 of class 6 NCERT history, and the name of the chapter is Buildings, Paintings and Books. Let's start. Chapter number 12. Chapter name is Buildings, Paintings and Books. This is of NCERT class 6, and this is of part 1. And also remember that students, this is the last chapter of class 6, and after that we will do summary and screening the chapters, and after that we will start the syllabus of class 7. Before that, this is chapter number 12 part 1, the last chapter of class 6, buildings, paintings and books. Buildings, इमारतें, पेंटिंग, चित्रकारी तथा किताब. So students, as we know that history is a very interesting topic, and we can get knowledge of history from the some of the sources like inscriptions, pillars, coins, stones, carving, as well as here mentioned the buildings, paintings, as well as the books are the great source of information of history. तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि स्मृतियाँ, इमारतें, सिक्के या शिलालेख या फिर जो इमारतें हैं, चित्रकारी है या जो किताबें हैं, वो इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है. So here we will discuss about the importance in the context of history of buildings, paintings and books. Okay, so we will talk about the buildings. So in this chapter we will start from the iron pillar. The iron pillar, जिसको हम लोह स्तंभ कह सकते हैं, that is name as the iron pillar. लोह स्तंभ एक ऐसा स्तंभ जो लोहे से बना है. The pillar that is made of iron. Yes, we are here talking about the greatest pillar of Mehrauli, that is situated in Delhi. The iron pillar of Mehrauli, Delhi, which is about 7.2 meter high and weight over 3 tons. तो यहाँ पर हम जो आयरन पिलर की बात कर रहे हैं, लोह स्तंभ की बात कर रहे हैं, वो महरौली में दिल्ली में है, विच इज़ अबाउट 7.2 मीटर हाई, जिसकी जो हाइट है, ऊंचाई है लगभग 7.2 मीटर, और जिसका जो वेट, जो इसका वजन या भार है, वो 3 टन से ऊपर है. ओके, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ द क्राफ्ट वर्क ऑफ दैट इरा और दैट पीरियड. उस समय और उस युग की एक महान जो एग्जाम्पल है, उस समय की जो आर्ट और टेक्निक थी, जो इंजीनियरिंग थी, जिसका वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट इट हैज़ बीन set up 1500 years ago
we can mention the date from there is a name card on the pillar चंद्रा। तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको 1500 साल पहले जो है सेटअप किया गया था इस महरौली के शिलालेख या लोह स्तंभ को। तो हम ये अनुमानित जो एक डेट है, तिथि है, उसका अनुमान हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इस पिलर के ऊपर जो है एक नाम जो है खुदाया गया है, खुदाई की गई है चंद्र, और इट कैन बी आ चंद्रगुप्त हु वाज द फाउंडर और द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, और इट कैन बी ए चंद्रगुप्ता सेकंड। तो यहाँ से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये चंद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी से जो है इसका संबंध माना गया। सो इट वी कैन से दैट इज द मैग्निफिसेंट एग्जांपल टू गेन नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। इस तरह से हमारे इतिहास को जानने में ये जो मील का पत्थर साबित होता है वो महरौली का लोह स्तंभ है जो कि दिल्ली में स्थित है। ओके, एंड in the next except we will also talk about some of the buildings that is magnificent example made of the bricks as well as stones. Buildings made up with stones and bricks. पत्थर अथवा ईंटों से बनी Okay, and many of the buildings have been found during the excavation by the archaeologists that are considered most significant if we talk about the history and if we want to gain the knowledge about the history। अगर हम इतिहास के साधन पर की बात करें और साधनों के संदर्भ की बात करें तो उसमें ये इमारतें जो हैं जो ईंटों और पत्थरों से बनी हुई थी इनका विशेष रूप से योगदान होता है। एंड दीज बिल्डिंग्स आर बिल्ट सम टाइम ऑफ माउंट। दीज बिल्डिंग्स आर ऑफन built with mud unburnt or burnt bricks। ओके, तो ये जो इमारतें उस समय बनाई गई थी वो ज़्यादातर मड, जिसको हम लोग कच्चा मटेरियल कह सकते हैं, कीचड़, अनबरंट और बरंट पकी हुई या बिना पकी हुई अनराइप जो ईंटें थी उनसे बनी हुई थी। एंड दीज बिल्डिंग्स वर as mount, stoops, shrines, monasteries, vihars, etc। तो ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी इन बिल्डिंग्स को हम लोग माउंट, जिसको टीला बोलते हैं, स्तूप के बारे में जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, श्राइन्स, मोनास्ट्रीज और विहार्स जो इन बिल्डिंग्स जो इन मटेरियल से बने हुए हैं उसके बारे में भी हम अभी डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी स्तूप्स। Stoops are the hemispherical
hemispherical buildings with the dome built by mud, burnt or unburnt bricks the bodily remains like teeth, hair, ash has been preserved here belonging to Mahatma Buddha and his followers. For example, Stupa of Sanchi in Madhya Pradesh, Stupa of अमरावती। तो जो स्तूप हैं, स्तूप एक इस तरह की इमारतें हैं जो हेमिस्फेरिकल अर्ध गोलाकार बिल्डिंग्स हैं विद डोम, जिनके ऊपर गुंबद बना हुआ है ऊपर से, बाय मड, जो कीचड़, पकी या अनपकी हुई ईंटों से तैयार किए गए हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द बॉडी रिमेन्स, जो शरीर के बचे हुए हिस्से हैं लाइक टीथ, दांत, बाल या जो राख बची हुई है, has been preserved here, इसको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, that belong to महात्मा बुद्ध and his followers। महात्मा बुद्ध की याद में जो महात्मा बुद्ध की यादगारी हैं, रिमेन्स हैं, बची हुई चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर संभाल कर रखा गया है, या उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके डिसिपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी स्मृतियों को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया बाय मॉन्क्स एंड नन्स, ओके, हु आर दी who are spreading the Buddhism। जो monks और nuns हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु हैं, उन्होंने इसको संभाल कर रखा है। and these buildings are known as stoops। इन buildings को स्तूप कहा जाता है। for example the स्तूप of सांची in मध्य प्रदेश, the greatest example, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर हम एग्जाम्पल करें स्तूप की, तो मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप बड़े फेमस हैं, as well as the स्तूप of अमरावती। Okay, and shrine are the kind of temples, shrines are the kind of temples which has been built for performing the worships of some deities or god or goddess। तो ये एक तरह के खास किस्म के मंदिर थे। These are also considered the holy places of Jainism। इनको जैनिज्म, जैन धर्म की पवित्र स्थानों को भी श्राइन कहा जाता है, जिनका संबंध जो है जिसका संबंध पूजा पाठ से है। जो पूजा पाठ हम किसी अपने इष्ट देवता के लिए करते हैं, किसी गॉड या गॉडेस, देवता या देवी के लिए करते हैं। एंड मोनेस्ट्रीज एंड विहार्स दैट आर built by carving the rocks and stones and caves for the monks and nuns related to Buddhism and as well as Jainism। बुद्ध धर्म और जैन धर्म में जो मोनेस्ट्रीज या विहार बनाए गए, where the only that person were living who were belonging or who were the followers of Buddhism or Jainism, as well as they who were following the rules and the regulation according to this religion। तो इस धर्म के अनुसार इन नियमों को मानते थे, केवल वही लोग जो थे वो वहाँ पर रह सकते थे। And these stoops, we'll talk about these stoops। Stoops can be a larger or a small। ये स्तूप बड़े भी हो सकते थे या ये स्तूप छोटे भी हो सकते थे। And there was a box at the center। Okay, there was the box at the center where the remains has been kept under the earth। Okay,
and this was known as casket. एक संदूक बना होता था जिसमें ये सारी रिमेन्स रखी जाती थी और धरती में उनको ऊपर कवर करके रखा जाता था, जिसको कैस्केट कहा जाता है. As well as there are some type of we can say that towers are there. Some type of towers are set up on the upper sides of these stoves, which was known as the shikhar. शिखर टीसा ऊपर बनाया हुआ था, टीला. That was the symbol of any sacred place, जिससे पता चलता था ये कोई sacred जगह थी, कोई धार्मिक जगह थी. And प्रिदर्शिका, प्रिदर्शिका was the path around the stoop. The devotees take around clockwise to show their devotion here. At the entrance there was a railing which was decorated beautifully. तो एक जो पाथ जिसको हम कहते हैं, एक मार्ग, एक रास्ता बना होता था स्तूप के चारों तरफ सर्कुलर शेप में, जिसको परिदर्शिका कहते थे. और ये परिदर्शिका ऐसी थी जहाँ पर क्लॉकवाइज, जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, वैसे ही जो डिवोटीज थे, जो महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे, जो लोग स्तूप के पास महात्मा बुद्ध की यादगार दर्शनों के लिए जाते थे, वो वहाँ पर राउंड लेते थे क्लॉकवाइज. एट द एंट्रेंस देयर वाज अ रेलिंग, और अक्सर ही जो एंट्री होती थी वहाँ पर रेलिंग्स लगी होती थी, बड़ी शानदार, दैट मेड ऑफ आयरन और एनी अदर मेटल, एंड विच वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद स्टोन और एनी अदर, जिनको किसी पत्थर या किसी और वस्तु के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत बनाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था. ओके, that was about the we will discuss about the stoops, and now we'll also talk about the temples. Lot of temples have been found also. Lot of temples have been found, including the temple of Mahabalipuram. Okay. Durga temple, etc. तो किस तरह के कुछ मंदिर भी हमें मिले हैं बड़े खूबसूरत और शानदार, जैसे कि महाबलीपुरम का मंदिर, दुर्गा मंदिर. ओके, महाबलीपुरम का मंदिर जो है तो ये बहुत शानदार नमूना है. अगर हम मंदिरों की शिल्प कला की बात करें तो महाबलीपुरम का मंदिर जो है बड़ी एक शानदार एग्जाम्पल है, बिकॉज इट हैज़ बीन कार्ड विद ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस स्टोन्स. ये काफ़ी महंगी और चमकदार जो है पत्थरों को तराश के बनाया गया है. एंड these temples were related to the worship of
विष्णु, शिव एंड गॉडेस दुर्गा। और ऐसा माना जाता है कि उस समय ये मंदिर जो थे वो विष्णु, शिव और दुर्गा देवी की पूजा के लिए बनाए गए थे, जहाँ पर अधिकतर लोग इन देवी देवताओं की पूजा उसमें जो है करते थे। और एक उसमें जो चीज़ होती थी, जो मेन चीज़ थी, द मेन थिंग ऑन दिस टेम्पल दैट वाज दी गर्भगृह। दी गर्भगृह was the main famous and central point of any temple। तो जो ये मंदिर थे, उन मंदिरों के बीच में जो एक मुख्य चीज थी, जो खास विशेषता थी, या उसका जो सेंट्रल पॉइंट था, केंद्र बिंदु था, उसको हम गर्भगृह कह सकते हैं। गर्भगृह, गर्भगृह जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गर्भ ये मंदिर के किसी सीक्रेट, किसी रहस्यमयी जगह का नाम है, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, जो जमीन के अंदर भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम गर्भ। और गृह मतलब घर, एक ऐसा घर या एक ऐसा कमरा जो धरती के गर्भ में बनाया गया है, या एक रहस्यमयी कमरा, वेयर द प्रीस्ट्स वर शोइंग द वर्शिप स्पेशली ऑन द स्पेशल ओकेशंस, जहाँ पर जो पुजारी लोग थे वो एक खास ओकेशंस पर जो है अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। एंड देयर वर आल्सो द sufficient spaces known as मंडप। कुछ खास जो सफिशिएंट रूप में उस समय वहाँ पर स्पेस की जरूरत थी, खाली जगह की, तो वहाँ पर बाहर कुछ खाली जगह भी पाई जाती थी, जिसको मंडप कहते थे, वेयर पीपल गैदर्ड इन दी स्पेशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स, जहाँ पर लोग किसी खास या धार्मिक उत्सव के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे, ऐसा ये माना जाता है। एज वेल एज द ब्यूटीफुल entrance of temples were known as गोपुरम। तो जो सुंदर जो था प्रवेश बनाया गया था पिलर से या किसी स्पेशल स्टोन के साथ, उनको मंदिर का गोपुरम कहा जाता था। ओके, एंड नाउ विल टॉक अबाउट हाउ दीज स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ड। Here we'll study how these stoops and temples built। ये स्तूप तथा मंदिर कैसे बने। This is the question of surprise, that it was not an easy task to build these kind of stoops and temples in these era, because it was a very expensive affair। क्योंकि ये चीज़ बड़ी कीमती थी, मंदिरों और स्तूपों का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, तो फिर ये कार्य संपन्न कैसे हुआ। It is believed that mostly the kings and queens were there who helped to build these temples and stoops, because there was the source of income of administration,
प्रशासन के पास कुछ आमदन के साधन थे, एंड few money they were spending to build these type of stupas and temples, as well as there were the devotees who were performing come on the holy places to perform their worships. They were also taking some of the gifts as well as money which were using on these stupas and temples as well as on the decoration. तो जो राजा लोग थे, रानियां थे, उन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया था इन स्तूप्स मंदिरों का निर्माण करने के लिए। इसके अलावा जो उस समय जो डिवोटिस थे, जो देवी देवताओं को या इनके अनुयायी थे, को मानने वाले लोग जो थे, वो अपनी तरफ से विशेष कुछ तोहफे लेकर आते थे या कुछ पैसे के रूप में भी यहाँ पर चढ़ावा देते थे, जिसका प्रयोग इन मंदिरों स्तूपों के निर्माण के लिए किया जाता था। और साथ ही साथ में इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। एज वेल एज देयर वर द ट्रेडर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट पीपल, मर्चेंट्स, ओके। तो कुछ जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, आर्ट क्राफ्ट शिल्प कला करने वाले लोग थे, वो लोगों ने भी जितना हो सका सबने अपना जो था योगदान यहाँ पर दिया हुआ था। एज वेल एज व्हेन there was the spreading of Buddhism and Jainism, so they required the thing that is the monasteries as well as vihars. जब बुद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये स्प्रेड हुआ, तो उन लोगों ने, because it was not easy to preach in the rainy season, okay, so they required some of the places, isolate places, कुछ ऐसी जगह उनको चाहिए थी जो एकांत में हों। So for this purpose, and the rulers of that era or merchants or the rich persons helped them. They have carved the huge stones and caves and settled some of the isolate rooms is known as monasteries, where they give preachings of their religions as well as they were teaching the people. और उस समय वहाँ पर जो मॉन्क्स और नन्स थे, जो सन्यासी लोग थे, वो उन मंदिरों में, उन स्तूपों में अपने धर्म का जो है प्रचार करते थे, लोगों को दीक्षा देते थे। एंड इन रिटर्न पीपल आल्सो ब्रिंग सम काइंड ऑफ फूड एज वेल एज गिफ्ट फॉर देम। तो लोग उनके लिए कुछ खाने को या फिर उनके लिए उपहार के रूप में कुछ चीज़ें बदले में लेकर आया करते थे। ओके, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट दी पेंटिंग। About painting, चित्रकारी के बारे में। Caves of Ajanta and Ellora are the magnificent example of painting and craft. So अगर हम चित्रकारी की बात करें, we will talk about the painting. The caves of Ajanta and Ellora are the magnificent example of painting as well as the craft work. तो शिल्प कला की बात करें, चित्रकारी की बात करें, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं कि वहाँ पर सुंदर मंदिर, सुंदर चित्रकारी और सुंदर गुफाओं के नज़ारे जो देखने को मिलते हैं। ओके, देयर हैज बीन temples are built here. यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर बनाए गए हैं। Temples are built here by carving the huge stones and caves. बड़े बड़े पत्थरों या गुफाओं को तराश के यहाँ पर जो है मंदिर बनाए गए हैं। That are related to different god and gods, जो जिनका संबंध अलग अलग जो है देवताओं या देवियों से माना जाता है। And there are beautiful paintings along with the different colors. वहाँ पर अलग अलग चित्रकारी देखने को मिलती है अलग अलग कलर्स में। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट
these colors have been uh, uh, marked there in the torch light. तो ऐसा माना जाता है जैसे इनको चित्रकारी वहाँ पर टॉर्च लाइट में की गई है. एंड दे आर these paintings and colors are still vivid after 15 years. Is the remarkable thing. As these colors were made of pure plants and minerals. तो आर्ट क्राफ्ट चित्रकारी की जो अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं, और ये चित्रकारी और जो रंग हैं आज भी इसके विविड मतलब स्पष्ट 15 सालों के बाद भी, ओके 1500 ईयर्स सॉरी, तो 1500 सालों के बाद भी ये आज इतने ज़्यादा जानदार नज़र आते हैं. उसका कारण है रिमार्केबल थिंग, ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ है. एज दीज कलर्स वर मेड ऑफ प्योर प्लांट्स एंड मिनरल्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो उस समय कलर बनाए गए थे, रंग बनाए गए थे, ये शुद्ध पौधों और खनिजों से मिलकर बने थे. दैट्स वाई स्टिल दिस पेंटिंग इज अ एक्सीलेंट एग्जाम्पल विच वी कैन फाइंड आउट इन द हिस्ट्री. हमारे इतिहास में इसका एक अलग स्थान है. ओके तो इस तरह ये हम चित्रकारी के नमूने यहाँ देखने को मिलते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं में in the different temples. Okay students, this is all about from this part 1 in this chapter, and in our next lecture in part 2 we will also discuss about the books that are related to the history as well as some few facts. Till that, enjoy your reading, and please like and subscribe our channel. Thank you.